In the second video, in the first video we have seen about the absolute error. Absolute error is equal to what? Delta A1 is equal to A mean minus of A1. Okay. Now mean absolute error. Next definition is for what? Mean absolute error. Mean absolute error means what? It is written as delta A mean, okay, which is equal to delta A1. Delta A1 means absolute error of the first reading. Delta A2 means absolute error of the second reading. Delta A3 absolute error of the third reading. Delta AN absolute error of the nth reading divided by n. So this is called as the mean absolute error. So in case of mean absolute error हमें क्या करना है? सबसे पहले ये प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? A1 plus A2 plus A3 plus dash 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 AN divided by n. That will give you the absolute value. Then we have to calculate the absolute error. Absolute error is equal to what? Delta A1 is equal to A mean minus A1. ये फॉर्मूला दिया हुआ है. Delta A2 means A mean minus A2. Similarly, mean absolute error means whatever the absolute error we have found out. For 10 readings, suppose I am finding delta A1, delta A2, delta A3. So what I have to do? Delta A1 plus delta A2 plus delta A3 plus dash 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 delta A10 divided by 10 करेंगे. तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? Mean absolute error. So mean absolute error is what? It is the arithmetic mean of all the absolute errors. Clear हो गया? Mean absolute error किसे कहेंगे? It is the arithmetic mean of all the absolute error. इज इट क्लियर? इसमें क्या करना है हमें एब्सोल्यूट एरर हर एक रीडिंग का निकाल लेना है और जो भी एब्सोल्यूट एरर आया हुआ है इन सबको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट जितना हम कर रहे हैं वो लिखना है. क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर. नेक्स्ट वी हैव टू सी व्हाट रिलेटिव error, or this is also called as fractional error. This is also called as what? Fractional error. Relative error or fractional error जो है it is given by the ratio of delta A mean divided by A mean. छोटा छोटा definitions हैं and these definitions are very much important फॉर द केस ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के वक्त तुमको मालूम रहना चाहिए रिलेटिव एरर किसे कहते हैं या फ्रैक्शनल एरर किसे कहते हैं. रिलेटिव एरर किसे होगा? इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर टू द एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू. डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इज कॉल्ड एज द रिलेटिव एरर. इज इट क्लियर? अब इसके बाद आता है percentage error. Percentage error means what? In case of percentage error, it is given by relative error multiplied by 100%. It is represented in terms of percentage. So percentage error, relative error is what? Delta A mean divided by A mean into 100%. This is called as what? Percentage error. So in case of percentage error we have to understand that it is the relative error multiplied by percentage error. It is called as what? Relative error multiplied by percentage error. Is it clear? तो ये क्या हो गया अपना पूरा? percentage error, relative error and mean absolute error हो गया है. अभी नेक्स्ट क्या आएगा अपने को? नेक्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाट आर द प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स. अभी ये सब तो हमने एरर्स पढ़ लिए. अब एरर्स का प्रोपोगेशन कैसे होगा? सो इन केस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स इसका मतलब क्या है?
सपोज एक गलती मैंने कर दिया, एक एरर आ गया, ओके। प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम, प्रैक्टिकल करते समय मैंने एक एरर हो गया मेरे से, तो वो एरर उस प्रैक्टिकल के लिए मैं किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को मैं करूँगा तो वो एरर मल्टीप्लाई होते जाएगा, उसमें हर एक में ऐड होते जाएगा। सपोज मैं सम कर रहा हूँ तो भी ऐड होगा, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो भी ऐड होगा, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो भी ऐड होगा, डिवीजन कर रहा हूँ तो भी ऐड होगा। इसका मतलब क्या है, जो फाइनल एरर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल एरर जो आया हुआ है, पहला जो फर्स्ट टाइम में जो एरर आया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? प्रोपगेशन ऑफ एरर मीन्स फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते समय में हमको बहुत सारे रीडिंग्स लेने हैं, और उस रीडिंग करते समय में जो हमने एरर कर दिया है और वो जो एरर है अपने फाइनल रिजल्ट तक एप्लीकेबल होगा, ओके। चाहे हम उसको एडिशन कर रहे हैं, चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो वो एरर हर केस में ऐड होता रहेगा। तो इस सेक्शन में हमें देखना है, अगर हम ऐड करेंगे तो उस सम का एरर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, डिफरेंस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो उस एरर का क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, डिवीजन कर रहे हैं तो क्या होगा, और पावर ऑफ क्वांटिटी कर रहे हैं तो क्या होगा। अभी 2 3 4 5 चीज़ें हैं इसके अंदर। प्रोपोगेशन ऑफ errors, how the errors will propagate. First is error in sum करेंगे तो error कैसे होगा। सेकेंड, error in difference. थर्ड, error in product, मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं। फोर्थ, error in division. फिफ्थ, error in पावर ऑफ क्वांटिटी। मतलब पावर ऑफ क्वांटिटी का मतलब है a to the power of x, जहाँ x क्या है, एरर है, और a क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स वी आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, ओके। तो a to the power of x आ गया, तो इस वक्त पावर के केस में ये एरर कितना बनेगा। तो ये 5 टाइप के प्रोपोगेशंस है एरर के। सो नाउ वी हैव टू सी वन बाय वन, ओके। यू स्टूडेंट, you have to understand, you have to write the notes from the PDF, and after writing the notes from the PDF you have to listen to the video, and then if suppose you are having any doubt you can ask me through WhatsApp only, okay. So now we will see error in sum. Suppose for the first case, if you have to understand what is error in sum के केस में क्या होता है, सपोज आई एम कंसिडरिंग q इज इक्वल टू a प्लस बी, a एंड b आर द 2 ऑब्जर्व क्वांटिटीज, और उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ओके। डेल्टा a be the absolute error in the first value and delta b be the absolute error in the second value. अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, ओके, तो डेल्टा q क्या हो जाएगा मेरा, टोटल एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b. व्हाट इज डेल्टा a एंड डेल्टा b? डेल्टा a एंड डेल्टा b आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन द 2 क्वांटिटीज a एंड b. सो जब भी हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, व्हेन द 2 फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, ओके। इसमें भी एरर आ रहा है, इसमें भी एरर आ रहा है, दोनों के दोनों एरर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सो देयरफॉर द 2, इफ द 2 क्वांटिटीज आर एडेड देन व्हाट विल हैपन, सम विल बिकम इक्वल टू द सम ऑफ 2 एब्सोल्यूट एरर्स। डिफरेंस आएगा, ओके। इन केस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ एरर व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम डेल्टा a माइनस ऑफ डेल्टा b, ओके। सो ये आएगा तुम्हारा एरर इन डिफरेंस। थर्ड वीडियो में हम बाकी के 3 देखेंगे।